all. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, Good sir. morning, Good sir. morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. So most of the people or students are join 48. We just wait 1 or 2 minutes and start session. Almost the 50 are present. Abhishek, you have any doubts? You raise your hand. Okay. Okay, so we start session. In HTML, we discuss how to create a web page and which tag is required. Okay, and without tag, you cannot create any web page. So for that, the tag is required, and you must know about the tag. And through in our syllabus, you are very well know about the HTML tag because this is the basic one. Okay, once you clear the doubt in the tag, how to use, how to input in the web page, then you can create your own web page, right? So in the previous session, we little bit discuss about the HTML part, and today we again discuss the same part. So first I share my screen. I share my entire screen now. First is the introduction we already discussed. सर ब्लैक ब्लैक दिख रहा है. Just a second. Now you can be ये बाद में ऐसा इनपुट इंसर्ट हो रहा है. Now you have to be easy to visible. आप Yes, सही. sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, Yes. sir. Okay. Yes, sir. So in introduction, we discuss about the history first. So all of you know about the history. Like in 1980, IBM introduced first documentation language. Then the name is called a GML, General Markup Language. उसके बाद 1986 में SGML is the Standard Generalized Markup Language, which is founded by International Standard Organization ISO. And the last one is 1989, Tim Berners-Lee, who is the founder of Hypertext Markup Language. Right. Now, what is HTML? We discuss. So, HTML is the tool for designing a web page. Is a document language, and you can use text file or small markup tag in the HTML. The markup tag tells the web browser how to display the page, and the extension of the HTML is. All of you, please mute your mic at least. So, an HTML file, the extension must be HTM or the HTML, right? So it's a simple text editor you can use like Notepad. बट मैंने वैसा ही बोला था कि आप नोटपैड के अलावा विजुअल स्टूडियो, नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइम टेक्स्ट यूज कर सकते हो एज एन एडिटर. और दूसरे भी बहुत सारे एडिटर्स जो हैं उसमें आप कोडिंग कर सकते हो. नॉर्मल इज एन एच टी एम एल बिकॉज एच टी एम एल सपोर्ट
ईच एंड एवरी ब्राउज़र, ठीक है। तो आप कोई भी ब्राउज़र का भी यूज़ कर सकते हो, मैंने वो भी बताया था कि ब्राउज़र क्या होता है, वेब ब्राउज़र। देन द पेजेस मीन्स व्हाट, कि जब भी आप जो डोमेन है उसके बाद स्लैश करके जो भी मतलब डिस्प्ले होता है, दिस इज कॉल्ड योर वेब ब्राउज़र। देन द URL मीन्स द डोमेन नेम और द पेज एड्रेस, ठीक है। नाउ टैग की हमने शुरुआत की थी, HTML टैग। सो इन द HTML टैग used to mark up HTML element, okay, and the HTML tag are surrounded by the two character. First is the angle bracket, opening angle bracket, and then after closing angle bracket. So here is the example, like B tag. B is used for the bold of the text. जब भी आपको टेक्स्ट बोल्ड करना है तो सिंपल यू कैन राइट B tag. ओके, इसके बीच में आप जो भी कंटेंट लिखोगे और देन आफ्टर यू क्लोज योर B tag, right? The first tag in the pair is the start tag and the second is called a end tag. इसको हम बोलेंगे end tag. The text between the start and end tag is element content. तो इसके बीच में जो लिखा था वो मैंने जो भी लिखा है उसको क्या बोलेंगे हम, content. And the HTML tag are not case sensitive, मतलब आप कैपिटल भी लिख सकते हो, स्मॉल लेटर भी लिख सकते हो, लोअर केस एंड अपर केस बोथ आर एक्सेप्टेबल इन द HTML. So first example I discuss okay, this text is bold. Okay, so this is my content. Here the opening tag, here is the closing tag. ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ आपको एक स्मॉल एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि जहाँ पे हम टैग को कैसे यूज करेंगे। पूरा स्ट्रक्चर अभी बाकी है कि कैसे हम HTML स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके अंदर कैसे हम टैग को इनपुट करेंगे, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। बट फर्स्ट कि जब भी आप टैग यूज करते हो, कोई भी टैग हो, मतलब HTML का कोई भी टैग हो, तो वो स्टार्ट करना है और उसको क्लोज करना है। कुछ ऐसे 3-4 टैग जो हैं उसको हम क्लोज नहीं करते हैं तो भी चलता है, बट मेजोरिटी ऑफ द टैग उसको आपको स्टार्ट करना है एंड देन आफ्टर उसको क्लोज भी करना है। अब नाउ द एग्जांपल नंबर 2 कि जब हम HTML स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हमें एक बॉडी टैग की जरूरत पड़ती है। HTML टैग तो है ही, उसके नीचे हमें तुरंत क्या लिखना होता है, बॉडी टैग, ठीक है। तो जो भी हमने बॉडी टैग के अंदर लिखा है वो हमारा वेब पेज में डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे बॉडी करके जो टैग है वो चाहिए। The purpose of the body tag is to define the HTML element that contain the body of the HTML document. Body मतलब हमारा जो वेब ब्राउजर के अंदर हम पेज जो रन करने वाले हैं वो, ठीक है। अब दिस इज द पोर्शंस विच वी कवर्ड कि फर्स्ट हमें HTML टैग लिखना है, तो उसमें वो स्टार्टिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। फिर हेड टैग, तो हेड टैग क्यों लिखते हैं तो उसके बारे में प्रैक्टिकली शो करूंगा कि भी हेड टैग में क्या आता है। तो हेड टैग में ज्यादातर हम टाइटल का यूज करेंगे, टाइटल का यूज करेंगे, राइट। तो हेड टैग के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, टाइटल, और ये टाइटल में पेज की टाइटल जो भी देना होता है वो हम टाइटल में यूज करेंगे। एंड देन आफ्टर द बॉडी, अब बॉडी में क्या है कि जो वेब पेज के अंदर जो भी हमें डिस्प्ले करवाना है तो वो आएगा बॉडी टैग के अंदर, ठीक है। दिस इज द कमेंट सेक्शन कि हमें जो पेज में नहीं चाहिए हाइड रखना है टेम्पररी, एंड व्हेन एवर इट्स रिक्वायर्ड उसको अनहाइड करना है। तो बार बार हम कोडिंग चेंज नहीं करेंगे, बार बार हम कोड लिख के डिलीट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, वो कोड लिख के उसको टेम्पररीली हाइड कर देंगे विद द यूज ऑफ कमेंट, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक टैग कि जब भी हम HTML स्ट्रक्चर की शुरुआत करते हैं, HTML पेज बनाते हैं, तो उसके लिए द HTML इज रिक्वायर्ड, हेड इज रिक्वायर्ड, टाइटल इज रिक्वायर्ड, बॉडी टैग इज रिक्वायर्ड एंड द कमेंट सेक्शन के जो हमें वो हाइड रखना है, अभी शो नहीं करना है। आई विल शो यू प्रैक्टिकली। उसके बाद हम देखेंगे हेडिंग्स। तो HTML में जब शुरुआत होती है टैग्स की,
ठीक है, तो वो हेडिंग से होगी। तो आपने हेडिंग तो देखा होगा कि कोई भी पेज है तो उसका हेडिंग हम लिखते हैं, उसके अंदर टाइटल लिखते हैं, ठीक है। तो टाइटल लिखने के लिए HTML में हेडिंग की जरूरत पड़ती है, और हेडिंग के कितने टैग है, तो H1 से लेके H6 तक, ठीक है। द H1 define the largest heading where the H6 is the smallest heading, ठीक है। तो जब भी आप हेडिंग बड़ा सा यूज करना चाहते हो, बड़ा सा हेडिंग यूज करना चाहते हो, तो आपको क्या लिखना होगा, H1, और स्मॉलेस्ट हेडिंग के लिए आपको H6। साइज के हिसाब से हेडिंग चेंज होता है, ठीक है। जैसे H1 लिखूंगा तो हेडिंग साइज बड़ा हो जाएगा, 2 लिखूंगा तो उससे छोटा होगा, 3 तो उससे छोटा, ऐसे करके H6 इज द स्मॉलेस्ट वन। तो जब भी हमें हेडिंग यूज करना है तो H1 से H6 तक का टैग यूज करना है। नाउ द पैराग्राफ। अब पैराग्राफ क्या है तो जैसे कि मल्टीपल लाइन में मुझे कंटेंट लिखना है, मल्टीपल कंटेंट लिखना है, पूरा एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, पूरा एक स्टोरी लिखना है, डॉक्यूमेंट लिखना है, तो उसके लिए HTML के अंदर P करके टैग है, P टैग स्टार्ट एंड P टैग क्लोज। अब ये टैग ऐसा है कि आप उसको एंड नहीं करते हो तो भी चलेगा, बट यू मस्ट डू प्रैक्टिस कि आप कोई भी टैग शुरू करो तो उसको कंपलसरी क्लोज करो, ठीक है। बिकॉज ये प्रैक्टिस इट्स अ गुड प्रैक्टिस माना जाता है। आप कोई भी टैग मतलब स्टार्ट करते हो तो उसको कंपलसरी एंड, बल्कि आपको एंड करने रह गया है, मतलब नहीं किया है एंड, तो भी वो कोई एरर थ्रो नहीं करेगा, ठीक है। सो यू मस्ट यूज डू प्रैक्टिस के स्टार्ट करो टैग, फिर उसको कंप्लीट करो। जब भी आप पैराग्राफ यूज करना चाहते हो तो P टैग का यूज होगा। व्हाट वर्क नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, वर्क सभी करेगा, बट द एंड टैग अब नहीं करते हो तो कोई ब्राउजर में ये सपोर्ट नहीं करता है। तो विदाउट एंड टैग अगर P लिखते हो तो कोई ब्राउजर में सपोर्ट होता है और कोई ब्राउजर में नहीं होता है, ठीक है। दैट इज ओनली द रीजन वी यूज H1 to H6 टैग। तो आपको करना ही पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। व्हेन यू यूज द H1 to H6 टैग तो आपको क्लोज करना पड़ेगा, बट P टैग में ऐसा नहीं है कि आपको क्लोज कंपलसरी करना है। आप अगर P टैग को क्लोज नहीं करते हो तो भी चलेगा, ठीक है। द थर्ड point or the third tag which we discuss is the BR tag. BR tag is used when you want to break a line, ठीक है। जैसे C प्रोग्राम में आप /n करके नेक्स्ट लाइन में जाते हो, वैसे HTML में BR करके आप नेक्स्ट लाइन पे जा सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन मतलब न्यू लाइन, जैसे यहाँ पे ये टैग लिखा, अब यहाँ से मैंने न्यू लाइन शुरू करनी है तो यहाँ पे मुझे BR टैग लिखना पड़ेगा। द BR टैग is an empty tag and it has no end tag. BR टैग में भी वैसा है कि आप अगर उसको एंड नहीं करते हो तो चलेगा। तो BR टैग और HR टैग दोनों टैग ऐसे हैं कि जहाँ पे आपको एंड नहीं करना है। P टैग कंपलसरी आपको क्लोज करना है। BR और HR टैग, BR मीन्स नेक्स्ट लाइन के लिए, ब्रेक लाइन के लिए, एंड HR जो अभी नेक्स्ट में आएगा, द HR टैग इज यूज टू इंसर्ट द हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। मुझे कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्प्ले करवानी है तो मैं HR टैग का यूज करूंगा, लाइक दिस। फर्स्ट इज द पैराग्राफ, मैंने यहाँ कुछ लिखा है, फिर HR लिखा, फिर यहाँ पे मुझे लाइन चाहिए तो HR लिखा, एंड यहाँ पे मैंने अगेन P टैग को यूज किया है, ठीक है। तो ये दो जो टैग हैं, BR टैग एंड HR टैग, उसमें कोई एंड टैग नहीं आता है। आपको वो याद रखना है कि जब भी हमें यूज करना है BR टैग तो उसका क्लोज टैग नहीं होता है। H1 to H6 फॉर द हेडिंग, P इज यूज फॉर द पैराग्राफ, ठीक है। BR इज यूज फॉर द ब्रेक लाइन और द न्यू लाइन, एंड HR इज यूज फॉर द हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। यहाँ तक हमने देखा। सिंगल स्पेस, अब मुझे कुछ स्पेस चाहिए,
दो कैरेक्टर और दो वर्ड के बीच में, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, तो दिस इज नॉट अ टैग, ठीक है। हम उसको नॉर्मली स्पेस के लिए, सिंगल स्पेस के लिए बोल सकते हैं स्पेशल कैरेक्टर। तो एंड NBSP जो यूज करेंगे हम, तो उससे क्या होगा कि ये द और ये HR टैग ऐसा जो लिखा है मैंने, उसके बीच में ये स्पेस आएगा, दिस इज द NBSP, ठीक है। तो द आउटपुट कैसा आएगा, जैसे कि द, फिर स्पेस आएगा, फिर लिख के आएगा HR टैग डिफाइन अ horizontal rules like this, ठीक है। दिस इज द आउटपुट। अब ये जो स्पेस आई वो कहाँ से आई, तो विद द यूज ऑफ NBSP। और NBSP कैसे लिखेंगे हम, तो एम्परसेंड सिंबल, देन NBSP और देन सेमीकोलन। तो जब भी हमें वर्ड के बीच में स्पेस चाहिए, तो हम नॉर्मल स्पेस ऐसे नहीं यूज कर सकते, हमें क्या लिखना पड़ता है, NBSP, ठीक है। टेक्स्ट समरी में मैं बता देता हूँ कि हमने क्या क्या देखा। तो फर्स्ट हमने देखा H1 to H6 तक, कि जो हेडर के लिए, हेडिंग के लिए यूज होता है, टाइटल के लिए यूज होता है, कि जब भी हमें बड़ा टाइटल चाहिए तो H1, छोटा सा टाइटल चाहिए तो H6। तो H1 to H6 के बीच में हम टाइटल यूज कर सकते हैं। P इज यूज फॉर द पैराग्राफ। तो यहाँ पे हम पैराग्राफ जब भी ऐड करते हैं तो P टैग का यूज होगा। BR इज यूज फॉर द सिंगल लाइन। HR इज यूज, सॉरी, ब्रेक लाइन के लिए BR टैग। HR इज यूज फॉर द हॉरिजॉन्टल रूल्स, और हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हम HR का यूज करेंगे। BR एंड HR के कोई एंड नहीं होता, मतलब क्लोज करना नहीं होता टैग को। नॉर्मल स्पेस के लिए हम एंड NBSP सेमीकोलन यूज करेंगे। एंड द कमेंट, तो यही सिंबल जो हमने आगे भी देखा था कि हाइड करने के लिए कोड को हम कमेंट का यूज करेंगे। अब ये सारे एग्जांपल मैं प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ। H1 to H6, P टैग, BR टैग, HR टैग, NBSP एंड द कमेंट। ओके, so for that I first need 1.html, ठीक है। एक्सटेंशन मैंने 1.html लिखा है, मैं ये ओपन कर देता हूँ, कोई भी जो भी प्रोग्राम है। दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम, उसको मैं पहले तो डिलीट मार लेता हूँ, ठीक है। नाउ 1.html मैंने सेव किया। दिस इज माय सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, लास्ट टाइम मैंने लिंक शेयर की थी, आप नोटपैड में भी लिख सकते हो। अब मैं HTML लिखता हूँ ऐसे। तो दिस इज माय HTML structure. All of you view the screen. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, So, sir. okay. नाउ द HTML स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम हेड सेक्शन लिखते हैं। तो हेड सेक्शन के अंदर हमें हेड टैग की ज़रूरत पड़ेगी। हेड के नीचे हमें टाइटल लिखना पड़ेगा, फिर हेड को क्लोज करना पड़ेगा, देन बॉडी टैग स्टार्ट करना पड़ेगा और बॉडी को क्लोज, एंड देन आफ्टर HTML, ठीक है। दिस इज द नॉर्मल HTML पेज स्ट्रक्चर, कि जो हमें कोई भी HTML प्रोग्राम में ऐसा लिखना है। अब नाउ आई राइट द टाइटल, दिस इज माय फर्स्ट HTML प्रोग्राम, ठीक है। तो ये मैंने टाइटल में लिखा है। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल टाइटल लिखता हूँ कि यहाँ पे मुझे कोई टैग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइटल टैग मैंने यूज़ किया है और यहाँ पे हेड क्लोज किया है। अब मुझे जो वेब पेज, मतलब बॉडी के अंदर जो भी चाहिए, जो भी डिस्प्ले कराना है वेब पेज के अंदर, वो मैं कहाँ पे लिखूंगा, बॉडी टैग के अंदर। तो फर्स्ट मैंने जैसे हेडिंग की बात की, तो मैं H1 से ही शुरू कर लेता हूँ। H1 में लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, लाइक दिस, और H1 को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अगेन आई राइट H2,
close H2, H3, close H3, H4, then close H4, H5, close H5, H6, then close H6. Now I copy this hello world and put it between this tag. To check the difference of the size of this font size में जो भी difference रहेगा वो. अब मैं यूज करूंगा p टैग. पहले इतना मैं पहले मैं इतना एग्जीक्यूट कर देता हूँ, रन कर देता हूँ. ठीक है. सो नाउ आई सेव दिस प्रोग्राम, कंट्रोल एस, एंड उसके लिए ये रन करने के लिए मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, ब्राउजर की. ठीक है. सो नाउ आई ओपन माय ब्राउजर. उसके पहले डायरेक्टली आई ओपन माय पेज, राइट क्लिक ओवर हियर, ओपन विथ गूगल क्रोम. अगर क्रोम नहीं है तो इंटरनेट एक्सप्लोरर भी कर सकते हो, मोजिला फायरफॉक्स जो भी मतलब ब्राउजर है वो यूज कर सकते हो. सो दिस इज माय आउटपुट. दिस इज H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6. तो ये यहाँ पे क्यों डिस्प्ले हुआ, क्योंकि मैंने बॉडी टैग के अंदर लिखा है इसके लिए. ठीक है. अगर मैं बॉडी टैग में नहीं लिखता हूँ तो यहाँ पे ये डिस्प्ले नहीं होता है. ठीक है. तो H1 मतलब बड़ा सा टाइटल, उससे कम चाहिए तो H2, ऐसे आपको लिखना रहता है. अब जो मैंने हेडिंग में टाइटल लिखा था वो यहाँ पे आया, दिस इज माय फर्स्ट HTML प्रोग्राम. ये जो टाइटल दिख रहे हैं, ठीक है, दिस इज द पेज टाइटल. आप कुछ भी लिख सकते हो. वो कहाँ से होगा, तो टाइटल में से. जब भी आप टाइटल में जो लिखते हो वो यहाँ पे शो होगा. ठीक है. सो दिस इज माय फर्स्ट HTML प्रोग्राम. ये मैंने यहाँ लिखा है. अगर मैं प्रोग्राम पूरा लिखता हूँ, जैसे प्रोग्राम, नाउ आई चेक, ये पूरा लिख के आया. ठीक है. दिस इज माय फर्स्ट HTML प्रोग्राम. ठीक है. अब मुझे पैराग्राफ ऐड करना है, पर उसके नीचे मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है. तो मैं क्या यूज करूंगा, HR. ठीक है. मैं HR का यूज करूंगा. HR किसके लिए, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए. ठीक है. अब नाउ आई इंसर्ट द p टैग, और यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस इज माय फर्स्ट HTML program. Then after complete my p tag. Now I save this program. Again I run. Normally you just click and enter. Okay. So ये हुआ heading. फिर HR से मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया और यहाँ पे मैंने पैराग्राफ यूज किया. ठीक है. All of you understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Now. Yes, sir. Okay. So now I again put H3 tag. Okay. Then where it is display, so after the p tag, the H3 tag is display hello world. Okay. And again I use p tag, so it is display after hello world. Okay. So whenever I put the tag, it must be enter in the next line. But अगर मैंने ये p टैग लिखा है, बट यहाँ पे मुझे नेक्स्ट लाइन चाहिए, दिस इज माय, फिर मुझे फर्स्ट HTML प्रोग्राम न्यू लाइन में चाहिए. तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, BR टैग. अगर BR लिखूंगा तो यहाँ से लाइन ब्रेक हो जाएगी और ये फर्स्ट HTML प्रोग्राम कहाँ पे आएगा, नेक्स्ट और न्यू लाइन में. नाउ आई जस्ट चेक इट, ये होता है कि नहीं. तो यस, दिस इज माय, फिर मैंने BR लिखा तो ये कहाँ चला गया, न्यू लाइन में, और यहाँ पे हुआ फर्स्ट HTML प्रोग्राम. ठीक है.
अब HTML एंड प्रोग्राम सॉरी इज एंड माइक के बीच में मुझे स्पेस चाहिए, ठीक है। दिस इज द स्पेस, नॉर्मली स्पेस जो है वो वन स्पेस है, ये वन स्पेस है, ठीक है। और मुझे एक स्पेस बढ़ानी है, तो हाउ आई यूज और इज और माइक के बीच में मैं क्या लिखूंगा, तो NNBS. एंड NBSP. स्पेस सेमीकोलन, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैं एक ही स्पेस यूज कर सकता हूँ, आई यूज मल्टीपल स्पेस। तो अब देखोगे आप, देयर इज अ टू स्पेस, ठीक है। तो और भी ज्यादा स्पेस यूज करनी है तो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, आप ऐसे लिख सकते हो मल्टीपल। नाउ आई जस्ट चेक, देखो इतना स्पेस मैंने ऐड किया। तो स्पेस के लिए मैं यूज करूंगा एंड NBSP, नेक्स्ट लाइन के लिए मैं BR टैग का यूज करूंगा, और हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए मैं क्या यूज करूंगा, HR, ठीक है। सो दिस इज द नॉर्मल आउटपुट के जो आपको लिखना है। अब ये जो कमेंट, ये जो टेक्स्ट है, अभी मुझे ये डिस्प्ले नहीं करना है, ठीक है। मुझे इसको हाइड करना है, कमेंट पे रखना है। तो मैं क्या करूंगा, तो ये वाला जो P टैग है उसको मैं क्या करूंगा, कमेंट कर दूंगा। कमेंट के लिए मुझे ये सिंबल चाहिए, ओपनिंग ब्रैकेट, ओपनिंग एंगल ब्रैकेट, देन एक्सक्लेमेशन सिंबल, डबल डैश, और डबल डैश सिंपल क्लोजिंग ब्रैकेट। तो इससे क्या होगा, ये लाइन कमेंट मतलब टेम्पररीली हाइड हो जाएगी। नाउ आई जस्ट रन दिस वन। अब ये लाइन डिस्प्ले होती है कि नहीं, आई जस्ट चेक, तो ये हाइड हो गई, ठीक है। वेन एवर इट्स रिक्वायर्ड तो उसको मैं क्या करूँगा, कमेंट को निकाल दूंगा एंड यू कैन इजीली इंसर्ट पर्टिकुलर लाइन। तो हाइड एंड हाइड करने के लिए, टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए, नहीं करवाने के लिए आप कमेंट का यूज कर सकते हो। एंड दिस इज द वे, ये आपको यूज करना है। दिस इज द पैटर्न विच यू कैन यूज टू हाइड योर टेक्स्ट, हाइड योर टैग in the from the web page, ठीक है। whenever you use this you must complete the tag, मतलब ये जो कमेंट सेक्शन है वो कंप्लीट करो, तो इट इज रिमूव फ्रॉम द टैग। ओके, अब ये रही बात हमारा सिंपल HTML प्रोग्राम की, कि जो हम एडिंग यूज करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, और यहाँ पे दूसरा हमने टेक्स्ट लिखा है, ठीक है। अब साथ साथ हम एट्रीब्यूट्स की भी बात कर ले। तो एट्रीब्यूट्स क्या है, तो जब टैग के बाद हम जो भी लिखेंगे, ठीक है, उसको मॉडिफाई करने के लिए, पेज को कुछ नया लुक देने के लिए, डिजाइन करने के लिए। सर वन क्वेश्चन। यस सर हम जो NBS पी सेमीकोलन ना यूज करके सिंपल स्पेस भी दे सकते हैं, वो भी वर्क करता है? जस्ट अ सेकंड, फिर से आप बात करो, फिर से क्या बोल रहे हो? NBS पे सेमीकोलन टैग ना देकर सिंपल स्पेस भी दे सकते हैं, वो भी वर्क करता है सेम? आई जस्ट ट्राइड, देखो मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ, ठीक है। सिंपल मल्टीपल स्पेस देकर भी आप दे सकते हैं, या अभी देखिए रन कर लाइक दिस, यस। No, in my browser it's not working. बट I just save again. मेरे ब्राउजर में काम कर रहा है, मैंने भी देखा। नोटपैड प्लस प्लस एंड विजुअल स्टूडियो। No, this is the text editor. When I use the editor and give the space and save this program, you can run in your browser. सर मैं भी ब्राउजर में रन कर रहा हूँ, और मेरा भी फाइल जो है HTML की है। मैंने पहले प्रैक्टिकल किया, उसके बाद ही मैंने क्वेश्चन किया आपसे, अच्छा, डायरेक्ट नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर मैंने work नहीं कर बोला। रहा है। हाँ, मैंने बोला ना कि कोई मतलब ब्राउजर डिपेंड के, एक वर्जन के हाँ। ऊपर डिपेंड करता है। बट द गुड प्रैक्टिस इज के आप NBSP यूज करोगे तो वो कंपलसरी स्पेस देंगे, अदरवाइज इट मे बी स्पेस और नॉट, कि वो फिक्स नहीं है कि यहाँ पे मैं अगर ऐसे स्पेस दे देता हूँ
तो मेरे ब्राउज़र में ये सपोर्ट नहीं करता, लेटेस्ट ब्राउज़र। शायद मैं ये चीज़ इंटरनेट एक्सप्लोरर में ट्राई करके देख रहा हूँ, मे बी इट्स रन विजिबल और नॉट। मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन कर देता हूँ अभी। अब ये इंटरनेट एक्सप्लोरर में भी दिखा देता हूँ मैं, ये अगर स्पेस में ऐसे यूज़ करता हूँ तो रन होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे भी नहीं होता। मैंने ईस के बाद और माई के पहले इतना स्पेस दिया था और इसमें भी रन किया, तो ये परफॉर्म नहीं हुआ। बल्कि सर मैं अगर यस TRE टैग भी यूज कर सकते हैं ना? हाँ, टैब का यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, वो बाद में हम देखेंगे, अभी तो ये स्पेस की बात थी कि यहाँ पे मैं अगर NBSP अगर देता हूँ, ठीक है। अब नाउ आई चेक विथ माय इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो यहाँ पे स्पेस आती है। आई ऑल्सो चेक इन माय गूगल क्रोम ब्राउज़र एंड एंटर, तो यहाँ पे स्पेस आई। ठीक है, तो वो आप याद रखो कि जब भी HTML यूज़ करते हो तो वो सबके लिए कॉमन होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि किसी को ये दिखे किसी को ना दिखे, मतलब इट्स अ ब्राउज़र ओरिएंटेड। ठीक है, ब्राउज़र अगर सपोर्ट करता होगा किसी का तो वो नॉर्मल स्पेस में भी यहाँ पे डिस्प्ले होगा स्पेस। अदरवाइज द वर्जन इज न्यू और लेटेस्ट, तो समटाइम इट इज़ नॉट डिस्प्ले। ठीक है, तो यू मस्ट कि आपको स्पेस के लिए आप NBSP का यूज़ करो। ठीक है, हमें वो ग्लोबल जो कोडिंग है वो देखनी है कि सबके लिए वो कॉमन रहे, क्योंकि किसी के ब्राउज़र में ये सपोर्ट करेगा किसी के में नहीं करेगा। बट NBSP अगर लिखा होगा तो फोर्सफुली इट इज़ सपोर्टेड बाय ऑल ब्राउज़र। ठीक है, Okay, sir. That. नाउ इन माय दिस प्रोग्राम आई वांट टू चेंज। अब थोड़ा इसका मुझे क्या है कि कलर वगैरह चेंज करना है, थोड़ा उसका लुक चेंज करना है ये प्रोग्राम का। ठीक है, दिस इज अ प्योर वैनिला कि ब्लैक एंड वाइट कलर में पूरा वेब पेज दिख रहा है, बट एज अ डिज़ाइनर मुझे ये पेज अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़े एट्रीब्यूट्स डालने पड़ेंगे टैग के अंदर। सो विच एट्रीब्यूट्स आई कैन यूज, तो बॉडी टैग में फर्स्ट मैं एट्रीब्यूट यूज करता हूँ जो अभी मैं डिस्कस करने वाला, BG कलर। BG कलर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ YELLOW, येलो। तो ये डालने से क्या होगा, तो जो मेरा बॉडी है मतलब वेब पेज है वो कैसा हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। हाउ इट इज, यू जस्ट चेक इट। ठीक है, तो पूरा मेरा जो स्क्रीन है जो मैं यूज कर रहा हूँ मेरा स्क्रीन वो येलो कलर में हो जाएगा। किसी ने बोला कि भाई येलो कलर तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो आई जस्ट चेंज बी ल्यूई ब्लू कलर। ठीक है, नाउ आई चेक दिस ब्लू, तो दिस इज ब्लू कलर। आई जस्ट चेंज माय वेबसाइट। तो आप कोई भी वेबसाइट्स देखोगे अलग अलग, मूवी की, फिर हॉस्पिटल की, फिर कोई म्यूजिक की, यूट्यूब देखोगे तो ऐसे सब साइट्स हैं। तो उनका जो लेआउट मतलब जो बॉडी कलर है वो डिपेंड्स ऑन द वेबसाइट्स, वो चेंज होता रहता है। ठीक है, या नॉर्मली कलर वाइट ही रखता है सबका, बट वेन एवर यू वॉन्ट टू चेंज the color, okay, I just tried for pink color. I don't know it's working, but yes, it's working. So some common color you can use कि आप बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो, और वो हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। तो चेंज कलर चेंज करने के लिए मैं BG कलर का यूज करना पड़ता है। यहाँ पे आप कलर नेम लिख सकते हो, और कलर नेम आप नॉर्मल पिंक कलर लिख सकते हो, मुझे इससे भी लाइट कलर चाहिए। देन वी हैव यूज द हेक्साडेसिमल कोड और द RGB कोड। एक ओके, सो एट दैट टाइम यू कैन चेंज द कलर। BG कलर से आप बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हो। नाउ मुझे कुछ और, इसका जो अलाइनमेंट है वो अभी लेफ्ट हैंड साइड पे है। ठीक है, उसको मुझे यह सेंटर पे लिखना है। ये पूरा क्या है अभी लेफ्ट हैंड साइड पे, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये सेंटर में आए। तो सेंटर में मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो ये वाला टैग में मैं लिखूंगा अलाइन सेंटर। ठीक है, अब पहले मैं एक टैग में ये अप्लाई करके चेक कर लेता हूँ कि अलाइन
ये हेलो वर्ल्ड होता है कि नहीं होता है। तो दिस इज द फर्स्ट वन कि वहाँ पे मैंने ये एट्रीब्यूट्स डाला है। नाउ आई जस्ट चेक, तो यस हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आया। इसके नीचे मुझे एक लाइन चाहिए ऐसी, तो मैं क्या लिखूंगा, इसके बाद मैं सिर्फ लिखूंगा HR टैग। नाउ आई जस्ट चेक इट कि इसके नीचे लाइन आती है, तो यस हेलो वर्ल्ड फिर लाइन आई। अब यहाँ पे ये सब चीज तो मैंने देख ली, ये नहीं चाहिए, उसको मैं टेम्पररीली क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। मल्टीपल लाइन को कमेंट करने के लिए यहाँ से आप स्टार्ट करो और यहाँ पे ये क्लोज करो। अब मैं चेक करता हूँ कि ये हाइड हुआ है कि नहीं। मैंने क्यों हाइड किया कि लेटर ऑन मुझे अब चाहिए तो मैं ये यूज कर सकता हूँ। ठीक है, नाउ यू जस्ट चेक दिस इज माय टाइटल, हियर इज द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज माय कंटेंट। अब ये सब मुझे निकाल दे के यहाँ पे कोई एक पैराग्राफ लिखना है, तो पैराग्राफ मैं यहाँ पे गूगल पे कुछ भी ले लेता हूँ, लॉरैम करके टेक्स्ट जो होंगे सैंपल जनरेशन टेक्स्ट। ये टेक्स्ट है, मैंने यहाँ पे से ये कॉपी कर लिया शायद। चलो, इट इज इजी टू कॉपी, Ctrl+C। और ये सब निकाल के मैं ये वाला P टैग जो हमने रखा था यहाँ पे ये मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, ये मैं निकाल देता हूँ यहाँ से। ये वेबसाइट का कलर बैकग्राउंड ग्रे कलर था। सो नाउ आई जस्ट पुट lorem ipsum। नाउ आई जस्ट सेव इट। ये भी अभी टेम्पररी निकाल ही देता हूँ तो यू कैन नॉट कंफ्यूज मोर। ठीक है, मैंने सिर्फ H1 लिखा, यहाँ HR लिखा, यहाँ P टैग फॉर पैराग्राफ। नाउ आई रन दिस वन। सो ये पैराग्राफ ऐसा डिस्प्ले हुआ। ठीक है, तो दिस इज द पैराग्राफ। और भी मुझे एक दूसरा पैराग्राफ ऐड करना है, सो आई जस्ट यूज और कॉपी एंड पेस्ट द पैराग्राफ अगेन। आई पुट अंडर दिस एंड नाउ आई जस्ट चेक इट, तो दूसरा पैराग्राफ भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, सो द टाइटल आई जस्ट यूज, देन द HR यूज, देन द 2 पैराग्राफ आई जस्ट यूज। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ BR नहीं लिखा है, पर यस ये लिखा है। ठीक है, तो ये लाइन मुझे नेक्स्ट लाइन पे चाहिए, यहाँ से कंसिक्वेंस के बाद मुझे ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे है। दिस वन इज ड्यूइस, यहाँ पे था, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, BR। तो यहाँ से ये नेक्स्ट लाइन पे आएगा। ऊपर भी मैं ये कर देता हूँ। सो नाउ यू जस्ट चेक द आउटपुट। तो ये हो गया यहाँ से नेक्स्ट लाइन पे, यहाँ से ये नेक्स्ट लाइन। ठीक है, सो दिस इज द वे यू कैन पुट द पैराग्राफ। यहाँ पे मैंने पैराग्राफ यूज किया। अगर मैं P की जगह पे यहाँ पे H4 कर देता तो ये क्या हो जाता, हेडिंग। तो इसकी जो फॉन्ट का साइज है वो भी क्या हो जाती, बड़ी। तो दिस इज द H4 साइज एंड हियर इज द पैराग्राफ। ठीक है, दैट यू कैन चेक द डिफरेंस विथ फॉन्ट एंड द कलर आल्सो। अब मुझे फॉन्ट का जो कलर है वो ब्लैक है, यहाँ पे मुझे कलर चेंज करना है। तो मुझे पता रहे कि दिस इज द डिफरेंट थिंग, ये भी डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है। तो उसके लिए मैं कलर का एट्रीब्यूट यूज करूंगा। तो यहाँ पे मैं कलर दूंगा, सिंपल फॉन्ट कलर के लिए मैं कलर यूज करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा BLUE ब्लू। और ये कलर को मैं यूज करूंगा P टैग के अंदर भी, और H1 में अभी ऐसे ही रहने देते हैं। एंड नाउ आई रन दिस प्रोग्राम। सॉरी,
डायरेक्ट 11 हो गई। अगर आप 10 to 20 नंबर्स गिनोगे तो 11 नंबर्स होंगे, पर हम 20 को इस क्लास में Actually, the color is not working in the H4 tag. consider the numbers from 9 the numbers होंगे 10 numbers होंगे, that is your class level. Okay, आज रानी रखते हैं। अब आगे का जो है वेट पॉइंट वगैरह वो हम लोग कल सीखेंगे। I'm going to share the attendance link with you in chat box. Please fill your attendance. Color equal to WHIP. Please. Actually, for that particular, the style is required. So right now we don't use the color because in the normal HTML it is not working. You can use or include the style for that, and once you include the style, you can change the font color also. Okay, but you do practice at your home to create one web page where you can insert the HTML heading, then the particular page, and you can change the color also, and different types you can insert, or different color you can insert in the web page. Okay, so today हम इतना रखते हैं. Now I stop this session. इतना आप प्रैक्टिस करना. H1 से लेके H6 टैग जो है वो यूज करो, पैराग्राफ यूज करो, एंड यू मस्ट यूज अंडर द बॉडी पार्ट. एट्रीब्यूट में आप बीजी कलर को यूज कर सकते हो, अलाइन यूज कर सकते हो. इफ आई चेंज द अलाइनमेंट एज अ सेंटर, आप यहाँ H4 में भी अलाइनमेंट सेंटर कर सकते हो. Now you can check the this text is aligned center, and this is the normal alignment left hand side. ठीक है, तो you can do practice at your home. हमने आज जो सीखा H1 to H6 tag, paragraph tag, please mute your mic at least in the lecture. अटेंडेंस हम डेली एक लिंक क्रिएट करेंगे जहाँ पे आपको अटेंडेंस रखनी है आपकी. ठीक है, आज मैं ऐसी अटेंडेंस ले लेता हूँ विद टेकिंग अ स्क्रीनशॉट. फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन मैं एक गूगल शीट आपको शेयर करूँगा जहाँ पे आप अपनी अटेंडेंस को डेली ले लेना. ठीक है, please just wait in a while.